they want to explain, they want more details about these signals and their definitions. So I'll just brush up within 5 minutes and we'll continue with the next part. So okay. So last lecture, we'll start it with the point standard signals. So first, we should know what is signal. So signal is nothing but what? It is a particular function, or I can say, it is a particular phenomena where which carries or conveys some information. Now, for diploma holders, I'll just brush up the introduction to the signals and system and we'll continue with the standard signals. जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन लोगों के लिए एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, this and I'll continue with the point. Okay, now what is signal? Signal क्या है? Okay, it is the name of subject signals and system. But what is technically I can define signal? Signals क्या है? Signal is a phenomena or is a physical phenomena that carry or convey some information. Now, for you people, English is one of the best signal. I am talking to you in English, but still you are understanding what I'm telling you because you know the English. If you don't know English, if the person from non-English background, so if whatever I am talking to you, he or she is not in a position to understand the persons, what he is communicating. For example, right now, if I start to talking in Tamil, you are not in a position to understand what I'm telling you. Means only having a signal doesn't mean that you will get the information. Please understand. Having information doesn't mean you will understand the meaning or information in signals. Definition क्या बताती है? Any physical phenomena that carry or convey some information. Okay. If I'm saying like Tamil statement, that statement will consist some information, but still you are not in a position to recognize information from that signal. I'll use one word in Tamil. Rasavati alve inagati usa. Hope so. You're not getting things what I'm telling you. I know because you don't know Tamil. But in Tamil, what I have mentioned earlier, there is information that, my dear student, how are you? But still you are not in a position. Why? मेरे पास तो information, मेरे पास तो signal था. But having a signal, having information, but still it required some processing operation, then and then it will complete your things. And that is nothing but what? System. So this is nothing but what? System. So what is the signals and system? Signals and system is nothing but what? It is a combination together that this I called as system. And input to the system is called as input signal. And output from the system is called as output signal. Both are signals. ये दोनों ही signals होते हैं. But if you compare this signal with this signal, तो इसमें process होता है कि this signal will process here it is. This signals will process here in system. System will perform some operation on this signal and then you give the output. So input and output to the system will be the signal, but input system is an unprocessed signal, whereas output is a process signal. Now what is mean by processing? Processing का meaning क्या होता है? See, अभी मैं यहाँ पे एक word लिखता हूँ. Ear. Most of the people you know what is mean by this is the ear, because आपको इंग्लिश लैंग्वेज पता है, आपको Y पता है, E पता है, A पता है, R पता है, 26 अल्फाबेट्स पता है, लेटर्स पता होने के बाद उसको रिकॉग्नाइज करते हो, देन उसको कंबाइन करते हो, फिर आपके ब्रेन में एक वोकैबुलरी भी होती है. उस वोकैबुलरी में जब ये कंबाइन करने के बाद आप कंपेयर करते हो, इसको क्या कहा जाता है. सो इसको मराठी में वर्ष कहा जाता है, हिंदी में साल कहा जाता है. फिर इसके बाद आपको ये पता है इट इज इक्वल्स टू व्हाट 365 days. So this is nothing but what actual brain works on it. That is called as processing.
Now, processing means what? Performing certain operations. Processing means what? Performing certain operations. Processing, when we perform some certain operation, that concept is what? System. एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल देता हूं मैं आप सभी को. अभी आप स्टूडेंट्स में से हमारे क्लास में अभी डायरेक्ट सेकेंडरी भी स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं. सपोज दिस इज अ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज. Okay, here students come from after diploma, okay, and after 12th. So this is what? Input signal. These are input signal. Okay, these students from diploma and 12th, after completion, they enter into the system in engineering college, because this is what system. Engineering college performs some certain operation on these signals, on these students, like performing certain operation means what? We do take your exam, we teach you, we conduct practicals, we take vivas, we do performance practical sessions, we do training, then training and placement activities, communication skills. All these activity blah 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 will taking place at this case in system. It takes around 3 or 4 years. And after 3 to 4 years, output from the system comes as an engineer. And this engineer works to the society. So this is what the signals and system. Your perceptions matters there to understand the concept. Your philosophy requires to get this concept. Now, with the requirement of this concept, we start technically in the part of signals and system. सो सिग्नल्स हमें पता है. अभी इसमें जैसे कि अभी तक हमने डिस्कशन किया है, दिस इज व्हाट सिग्नल्स. सो व्हाट इज सिग्नल? सिग्नल इज नथिंग बट व्हाट? इट इज एनी फिनोमेना दैट कैरी और कन्वे सम इंफॉर्मेशन. कुछ भी है जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताती है. तो सिग्नल्स के भी बेहद टाइप्स है. तो इसमें से कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स होते हैं जो सिग्नल्स में स्टैंडर्ड्स को डिफाइन किया जाता है. अभी स्टैंडर्ड सिग्नल कौन से, वो हम वन बाय वन लर्न करेंगे एक बार, क्योंकि मुझे कल कुछ कॉल्स भी आए थे रिगार्डिंग सर आप लेक्चर मिस किया था तो रिपीट कर दीजिए. और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स भी आज ज्वाइन हो चुके हैं, इसीलिए मैं कल के 2 सिग्नल्स फिर से रिपीट करता हूँ एंड फिर हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन. चलो, स्टैंडर्ड सिग्नल्स मतलब क्या है? इसका स्टैंडर्ड मींस व्हाट? ये स्टैंडर्ड का मीनिंग होता है कि अमरावती, नागपुर, पुणे, मुंबई, अब्रॉड, ऑनचेस्टर, मैनचेस्टर, ऑक्सफोर्ड, कोई भी यूनिवर्सिटी में ये सिग्नल का नाम हम लेते हैं तो वो सिग्नल वही रहता है, मतलब उसका डेफिनेशन सेम है. ओके, कैसे? सी, नाउ इन दिस केस फर्स्ट स्टैंडर्ड सिग्नल आई कंसीडर हियर इट इज यूनिट स्टेप सिग्नल. यूनिट स्टेप सिग्नल्स. ओके, नाउ यूनिट स्टेप सिग्नल्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं उसको एक बार समझ लीजिए. यूनिट स्टेप सिग्नल्स को हमेशा जो शो किया जाता है मैथमेटिकल से, वो दिया जाता है u ऑफ t से. एक तो इसको यूनिट स्टेप सिग्नल कहिए या तो फिर u ऑफ t. u ऑफ t अल्टीमेटली मीनिंग ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शंस. u ऑफ t इज गिवन एज u ऑफ t इज इक्वल्स टू. नाउ u ऑफ t का मीनिंग क्या होता है? t की रेंज क्या होती है? t की रेंज होती है -इंफिनिटी टू इंफिनिटी. ओके, सो u ऑफ t की वैल्यू एक तो 1 होती है या तो फिर 0 होती है. हाँ, u ऑफ t की वैल्यू 1 कब होती है? इट इज 1 व्हेन t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. u ऑफ t की वैल्यू जो t की रेंज है -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो उसमें t की वैल्यू when t is greater than or equals to 0, it is 1, and when it is less than 0, it is 0. So this is what the actual definition of unit step signal. अब इसको प्लॉट कैसे करते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हम एक बार देख लेते हैं. ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसपे t वैल्यू दी जाती है. होगा आपका वर्टिकल एक्सिस, ये आपका होता है u ऑफ t. इसको वेवफॉर्म प्लॉटिंग कहा जाता है. ये आपका रेफरेंस हमेशा 0 होता है क्योंकि t की रेंज है. t यहां से स्टार्ट होता है जिसकी वैल्यू होती है -इंफिनिटी से 0 से लेकर +इंफिनिटी. ओके, नाउ
और e ऑफ टी पे यहाँ पे वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड, फिलहाल हम कंसिडर करते हैं 1। दिस इज व्हाट केस। अभी देखिए डेफिनेशन, इस पूरे डेफिनेशंस को हम यहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे रेंज क्या दिया, यू ऑफ टी इज यूनिट स्टेप फंक्शन, सो टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप देखिए ये जो पोर्शन होता है, ये दिस वन, यहां से ये पूरा, ये इसकी वैल्यू क्या होती, टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज इट इज द वैल्यू ऑफ टी। इट इज यहाँ पे जो भी फंक्शंस आप देखते हो, ये 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन, इसीलिए इस सेक्शन को टी इज ग्रेटर देन 0 कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है टी इज लेस देन 0। टी लेस देन 0 मतलब यहां से, मतलब -1 से टिल दिस केस, तो ये होता है आपका टी लेस देन 0। आपको सिंपल वैल्यू रखनी है। हम क्या कर रहे हैं, पहले इस टी को वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद यू ऑफ टी। अब मुझे बताइए, व्हेन द रेंज फॉर टी इज लेस देन, सॉरी टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसमें यू ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, इट इज 1। तो ये यहां से पूरा 1 होता है टिल प्लस इनफिनिटी। ओके, so this is what throughout 1. ओके, सो ये तो हमने एग्जीक्यूट कर दिया। फिर आपका क्वेश्चन आता है व्हेन t इज लेस देन 0, जब t की वैल्यू लेस देन 0 है तो u ऑफ t कितना है, इट इज 0। सो दिस इज व्हाट सिंपल 0। सो दिस इज व्हाट योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शंस। यूनिट स्टेप फंक्शंस या यूनिट स्टेप सिग्नल, इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू आप देखते हो, सो इट लुक्स लाइक अ स्टेप्स। दिस इज व्हाट अ यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके, आपको याद हो मैंने लास्ट लेक्चर भी बताया था, अभी भी बताता था, यूनिट स्टेप फंक्शन इज वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल इन डीएसपी और इन सिग्नल प्रोसेसिंग। सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल। कुछ पॉइंट आप नोट डाउन नहीं करते तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रख दीजिएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट यूनिट स्टेप सिग्नल। अब कभी भी मैं आपको पूछूं डिफाइन यूनिट स्टेप सिग्नल या ई ऑफ टी, जरूरी नहीं कि आप हर बार यूनिट स्टेप सिग्नल ही कहो, कभी आप यू ऑफ टी भी कह सकते हो। यू ऑफ टी अल्टीमेटली द मीनिंग इज यूनिट स्टेप फंक्शन। तो इसको डिफाइन कैसे करना है, सर यूनिट स्टेप फंक्शन इज अ स्टैंडर्ड सिग्नल वेयर for the t is greater than 0 function is said to be 1 and for t is less than 0 it is 0. So simple. That's your definition of unit step signals. The next is what, unit impulse फंक्शन। अभी हमारा सेकंड है यूनिट इंपल्स फंक्शन, जो कि हमेशा जो डिनोट किया जाता है वो होता है डेल ऑफ टी से। जैसे कि यूनिट स्टेप फंक्शन यू ऑफ टी से होता है, ये डेल ऑफ टी से होता है। चलो यू ऑफ डेल ऑफ टी से डिफाइन करते हैं। तो डेल ऑफ टी को हम डिफाइन करते हैं, इट इज डेल ऑफ टी इज इक्वल्स टू, ओके, फिर से इसमें दो क्लासिफिकेशन दिए जाते हैं, डेल ऑफ टी की वैल्यू 1 होती है या तो फिर 0 होती है। फिर आपको फिर से क्वेश्चन 1 कब होती है और 0 कब होती है। डेल ऑफ टी इज 1 व्हेन टी इज इक्वल्स टू 0। फिर से रिपीट करता हूं, डेल ऑफ टी की वैल्यू 1 कब होती है, व्हेन टी इज इक्वल्स टू 0। एंड डेल ऑफ टी की वैल्यू 0 कब होती है, व्हेन टी इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट्स इट। इसको कहा जाता है इंपल्स फंक्शंस। और आज भी सिग्नल प्रोसेसिंग इंपल्स फंक्शन को अपना खुद का वेटेज है। इसमें आज भी रिसर्च is going on to understand how we can change real-time applications in convolutions. Okay. Now coming to the point, इसको graphically how I can show. So see, this is okay. This is my horizontal axis given by t.
This is my vertical axis. It's given by del of t. अभी इसके ऊपर हमें प्लॉट करना है, ओके। लेकिन उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें t की रेंज कैसे दी है, 0, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पे 1। अभी आप देखिए इस फंक्शंस में फिर से t इज इक्वल टू 0, तो डेल ऑफ टी कैसे डिफाइन करते हैं, जब t की वैल्यू 0 है तो ही डेल ऑफ टी 1 है। तो यहाँ पे t की वैल्यू 0 कब है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0 तब मैग्नीट्यूड इज व्हाट, 1। सो दिस इज व्हाट द एक्चुअल सिग्नल्स। So this is what u of del of t, unit step functions। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन when t is equals to 0। when del of t is 0 it is 0, when t is not equals to 0, not equals to 0 मतलब 0 छोड़कर सभी पॉइंट, इसीलिए इस पॉइंट को पूरा वैल्यू 0 होता है। तो इसका ग्राफ आप देखते हो ऐसे निकलता है, इसको स्पाइक्स कहा जाता है, इसको इंपल्स कहा जाता है। दिस इज व्हाट इंपल्स फंक्शन, सेकेंड स्टैंडर्ड सिग्नल। आप पूरे कोई भी यूनिवर्सिटी में या पूरे ग्लोबली कहते हो कि आई एम हैविंग इंपल्स सिग्नल्स, दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड दैट द सिग्नल हैविंग t is equal to 0 is 1 and not is equal to 0 it is 0। so this is what a simple phenomena, that's why we called it as a standard signal। okay, hope so you understand। any questions with this? Okay, I'll continue with the next signal। okay? At the end of the session we'll discuss the next is what, ये हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, आई नो। इसके बाद नेक्स्ट आता है रैम्प सिग्नल्स। कोई रैम्प फंक्शंस के बारे में भी मुझे क्वेश्चन थे कल। अभी रैम्प फंक्शंस को आर ऑफ टी से डिनोट किया जाता है, या कोई रेफरेंस बुक में इसको यू सफिक्स आर ऑफ टी से भी डिनोट किया जाता है। तो आर ऑफ टी क्या होता है, इट इज अगेन द फंक्शंस आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू फंक्शंस, यहाँ पे दो पॉइंट फिर से दिया जाता है, t is greater than or equals to 0 and t is less than 0। when t is greater than 0 it is t and when t is less than 0 it is 0। तो कल मुझे क्वेश्चन था कि रैम्प फंक्शंस को यू आर ऑफ टी क्यों बताते हैं, बिकॉज ध्यान से देखिए ये जो पॉइंट है जहां पे अभी मैं मार्क कर रहा हूं, इस एक पॉइंट में t की जगह सपोज मैं 1 लिखता हूं, if I put instead of t as a 1 it will be a unit step functions, and if I put t instead of 1 it will be a ramp functions। इसीलिए यूनिट स्टेप फंक्शंस एंड रैम्प फंक्शंस में एक ही मॉड्यूलेशन का चेंज होता है, इसीलिए इसको u सफिक्स r ऑफ t से भी शो किया जा सकता है। इसको ग्राफिकली कैसे देखेंगे वो देखिए एक बार। ये होगा आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, रहेगा वर्टिकल, ये हो गया t r ऑफ t, ओके। ये हो गया 0, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया आपका t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये हो गया t इज लेस देन 0। ओके, चलो अभी देखिए फर्स्ट कंडीशन, व्हेन t इज ग्रेटर देन 0 उसकी वैल्यू क्या होती है t, व्हेन t इज ग्रेटर देन 0 द वैल्यू इज t। सो अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, चलो t इज ग्रेटर देन 0 मतलब इस सेक्शंस में आते हैं जिसमें आपको पता है t की वैल्यू 0 है, सो नेचुरल ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 होता है। उसी तरह 6, 7, 8 टिल प्लस इन्फिनिटी। इसी तरह आर ऑफ टी का मैग्नीट्यूड भी वैसे ही होता है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, इनका कहना क्या है,
For the value of t, if it is greater than 0, mention the t. So suppose यहाँ पे t की value 0 है, so this point will be 0. ये point 0. Okay. When t की value 1 है, it is 1. When t की value 2 है, 2. t की value 3 है, 3. t की value 4 है, 4. t की value 5 है, 5. So this is what the actual signals. This is what the case. It looks like a ramp of your signals. That's why it's called as ramp functions. और इसको linear functions भी कहा जाता है. ये आपका थर्ड स्टैंडर्ड सिग्नल्स है. अब आप में से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर व्हाट इज द रोल ऑफ स्टैंडर्ड सिग्नल्स, व्हाई वी आर गोइंग फॉर स्टैंडर्ड सिग्नल्स. ओके, मैं नेक्स्ट इसमें आपको आंसर बताऊंगा, बट बिफोर दैट काइंडली एक्नॉलेज मी वेदर यू आर गेटिंग और एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ. If you have any questions, your questions are most welcome. Hope so you are getting the things. Okay, fine. So this is what are ramp functions. After ramp, we'll continue to next is a parabolic functions. This is what my parabolic functions. In case of parabolic function, if you see, this is what my fourth standard signal. पहला था unit step signal, second is unit impulse function, third is ramp function, and the fourth one is parabolic function. इसको define किया जाता है P of t से. इसमें फिर से दो क्लासिफिकेशंस करते हैं हम. The one is what t is greater than or equals to 0. The second one is t is less than 0. When t is greater than 0, the answer is t square. Answer is t square. Or the answer is when t is less than 0, it is 0. अभी देखिए मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करते जा रहा हूँ पॉइंट्स को. यूनिट स्टेप फंक्शन में 1 था, रैम्प फंक्शन में t था, पैराबोलिक फंक्शन में t स्क्वायर है. इट इज अ पैराबोलिक फंक्शंस. इसको ग्राफिकली मैं कैसे शो कर रहा था वो एक बार देख लीजिए. नाउ दिस इज व्हाट योर सिग्नल्स. ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको t कहा जाता है. ये आपका वर्टिकल पॉइंट, p of t. ओके, ये होता माइनस इन्फिनिटी 0 टू प्लस इन्फिनिटी. ये हो गया आपका t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. और ये हो गया आपको t इज लेस देन 0. ओके, ये हो गया आपका 2 पॉइंट. अभी हमें तो पता है कि इस फंक्शंस में दिस फंक्शन विच वन, दिस वन, t इज लेस देन 0 होने की वजह से ये पूरी वैल्यू 0 रहेगी अप टिल 0. लेकिन यहां से t इज ग्रेटर देन 0, मतलब इस पॉइंट से t इज ग्रेटर देन 0, तो इसके पॉइंट स्टार्ट होते हैं लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ओके, ये हो गया t और ये हो गया आपका t स्क्वायर. चलो, when t is equals to 0, when t is equals to 0, u of p of t is equals to what? 0. तो यहाँ पे 0 रहेगा. ओके, when t is equals to 1, p of t is equals to 1 square 1, it is 1. when t is equals to 2, जब t की वैल्यू 2 है तो u of t की वैल्यू कितनी आती है? It becomes 4. when t is equals to 3, it becomes 9. And when t is equals to 4, it becomes 16. And it is that becomes 25.
So if you see, the graph is just like, sorry, I put the wrong marks. It is just like this way, because this is what the exponentially rising. Now this is not a linear function. A linear क्यों नहीं है? Because here it is t square. This is called is parabola, parabolic signal. इसमें और एक चेंज करता हूं तो सिग्नल और चेंज हो जाते हैं. सपोज इफ आई मेंशन t स्क्वायर बाय 2, t स्क्वायर बाय 2 करता हो तो सिग्नल्स भी आपका चेंज होता जाएगा. इट विल बी अगेन लाइक दिस. This is what the parabolic function. Now it's your choice कि आपको कैसे करना है, either t square है t square by 2. But this is what the parabolic signals. This is what the 4 standard signals. Okay, hope so understanding. Okay, we'll discuss. Okay, in the end of session. Then now the next is fourth one. ये हमारा fourth हो गया है standard signal. The next is एक्सपोनेंशियल सिग्नल. अभी एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स कैसे, एक बार इस पॉइंट को समझ लीजिए. एक्सपोनेंशियल सिग्नल इज डिफाइंड एज इट इज x of t is equals to e raised to the power alpha into t. एक्सपोनेंशियल सिग्नल कैसे डिफाइन करता है? E x of t is equals to e raised to the power x of t. So अभी इसको हम, what is alpha? Alpha क्या है? Alpha is nothing but what? Shape of your exponential signal. Shape of exponential signal. Shape of exponential signal कैसे? वो देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, 3 केस बनाते हैं. Case 1, case 2 and case 3. This is what my case 1, case 2 and case 3. ठीक है. केस 1 में हम क्या करते हैं, देखिए केस 1 में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ये स्टैंडर्ड सिग्नल है, और मैं कहता हूं मेरे स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स काइंडली जनरेट एक्सपोनेंशियल सिग्नल विद 3 डिफरेंट केसेस. तो मैथमेटिकली इक्वेशन इज व्हाट? x of t is equals to what? e raised to power alpha t. Okay, आपको e पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, t पता है इट इज अ टाइम फंक्शन है. अल्फा क्या है? अल्फा इज नथिंग बट व्हाट? इट इज द एनी आर्बिट्ररी वैल्यूज और एनी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज which change the shape of exponential signal. चेंज कैसे करता है द वैल्यू ऑफ अल्फा, वो हम देखेंगे इसमें केस में. तो सबसे पहले केस 1. केस 1 में इफ आई मेंशन, इफ suppose if case 1 में if I mention if alpha is equals to 0, suppose अल्फा की वैल्यू 0 है, तो क्या आप मुझे बता सकते x of t की वैल्यू कितनी रहेंगी? कोई भी आप में से स्टूडेंट्स प्लीज एक्नॉलेज. 1. Very good. It will be what? e raised to power 0, and e raised to power 0 it is a 1. So that answer will be the 1. Very good, appreciable. So it is what the function. इसको हम सिंपली ग्राफ प्लॉट करेंगे. ग्राफ प्लॉट करते हैं, आप देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन विथ t, ये हमारा वर्टिकल लाइन x of t, और हमें पता है कि t की वैल्यू कहाँ से होती है? माइनस इन्फिनिटी, 0 प्लस इन्फिनिटी. तो पूरा फंक्शन आपका 1 रहेगा. सो इट विल बी सिंपली 1.
सो ये आपका कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट फंक्शंस। माय डियर स्टूडेंट, प्लीज 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 अंडरस्टैंड, ये एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, लेकिन इस एक्सपोनेंशियल सिग्नल में इफ आई पुट अल्फा इज इक्वल टू 0 आई कैन गेट कांस्टेंट सिग्नल। अभी ये जो है कांस्टेंट सिग्नल दिखाई दे रहा है, क्या कभी एक्सपोनेंशियल सिग्नल है? सपोज मैं आपको पहले ये लाइन दिखा देता था कि एक स्ट्रेट लाइन, एक कांस्टेंट लाइन, और आपको बोलता था क्या एक्सपोनेंशियल लाइन है, तो आप नहीं बोलते थे, बिकॉज आपको एक्सपोनेंशियल पता है इधर इट इज राइजिंग और डिकेइंग। बट इफ आई डू सम प्रोवाइड सम कंडीशन from exponential line I can reconstruct my constant signal. This is one of the beauty of signal processing. और ये MATLAB में भी हम करके दिखा सकता हूँ प्रैक्टिकली। ओके, बट टू नो दो वी शुड नो प्रैक्टिकल, वी शुड नो थ्योरी। सो ये हो गया हमारा केस 1। अब केस 2 में जाते हैं। केस 2 में मैं फिर से एक कंडीशन रखता हूं, इफ अल्फा इज लेस देन 0। अल्फा इज लेस देन 0 मतलब क्या है? दैट इज नेगेटिव। अल्फा लेस देन 0 मीन्स व्हाट? -1, -2, -3, -5, -10, -20। तो इसके बाद x ऑफ टी क्या बनेगा? x ऑफ टी बनेगा x ऑफ टी इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा टी। इट इज सिंपली द माइनस अल्फा टी। सो if you plot the graph for this equation, it will be a 0 x of t minus infinity plus infinity। so अभी x of t की वैल्यू क्या है? minus infinity। so the signals which you can, minus means what? negative, it is goes on decreasing। so if you plot the graph from this point, it starts decreasing the values। आप पूछेंगे क्यों? सपोज यहाँ पे है आपका वैल्यूज 100, तो 100 is -100, then -99, -10, -5, -2, so the values goes on decreasing because the exponentially decaying signal, so that will generate your exponential decaying signal। so graphical representation will be like this, exponentially decaying because of only minus sign, signal is going downgraded। और हमारा थर्ड केस आता है, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। सो x of t will be what? x of t is equal to e raised to power alpha t। e raised to power alpha t, इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो इट विल बी लाइक दिस। x of t, this is t, this is my 0, minus infinity and the plus infinity। okay, this is what my exponential। लेकिन अभी यहाँ पे e raised to power alpha है, which is the value having positive होने की वजह से the graph will just going exponentially rising। this is the case of unit exponential signal। इसमें भी signals graph rise होता है as the value of t increases। so this is what fifth standard exponential signals, where I can define mathematically that exponential signals is nothing but what? x of t is equals to e raised to power alpha t। but if I do provide three different conditions for the value of alpha, like alpha is equal to 0, alpha less than 0, and alpha greater than 0, then I can have three different shades of signals। now on the basis of three different signals, I can make command, if I do some changes alpha, the shape of exponential signal will change। that's why आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे लिखा था alpha is nothing but what? it is a shape of exponential signal। if I change the value of alpha, the shape of exponential signal will like change, I will change। so this is what the case of signals। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि in programming, when I mention positive sign or negative sign, what exactly effect will take on graph, that you can understand from this mathematical analysis। because to understand any signals, you should know the philosophy behind it।
If you know the mathematical analysis, you need to provide on software platform how I can get the signals. इसका बेस्ट एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको. ये जो फर्स्ट केस है ना आपका, जो बता रहा मैं डायग्राम कांस्टेंट, इसमें कुछ भी नॉचेस नहीं है. सिग्नल इज गोइंग वेरी कॉन्स्टेंटली विदाउट एनी चेंजेस. तो आपको कंट्रोल सिस्टम या आपको एक ट्रांजिएंट सिस्टम देता है स्टेडी स्टेट में, जिसमें सिग्नल्स अप्स एंड डाउन नहीं हो रहे विदाउट चेंजिंग. दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट केस. इन सेकंड केस व्हाट, एज यू नो, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इट गेट एटेन्यूएटेड. एटेन्यूएटेड मतलब द वैल्यू ऑफ सिग्नल्स इट गेट डिग्रेडेड. सो दिस इज व्हाट द डिग्रेडेशंस. और डिग्रेडेड सिग्नल्स को हम एम्पलीफाई करते हैं, देन इट बिकम्स क्लास केस 3, जिसमें सिग्नल्स को अब हाई स्केल पे इंप्रूव किया जाता है. इसको बूस्टिंग कहा जाता है. सो एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स टेक प्लेस मेजर रोल इन केस ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग, बट विथ सम कंडीशंस. दिस इज व्हाट सिंपली एक्सपोनेंशियल सिग्नल. ये सिर्फ एक्सपोनेंशियल सिग्नल है. एक स्टेटमेंट में यूज करता हूँ, उसके बाद उसका और इसमें एक डिफरेंस होता है. एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स, यू नो द थिंग्स, बट व्हाट इज कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स? सपोज मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर देता हूँ कॉम्प्लेक्स. व्हाट विल बी द चेंज आई कैन डू ऑन दिस सिग्नल्स, वो तो हम बाद में देखेंगे. लेकिन दिस इज व्हाट द एक्सपोनेंशियल सिग्नल, एंड आफ्टर दिस विल लर्न complex exponential signal. So up till now we have discussed about standard signals. First is unit step function, second unit impulse functions, third ramp functions, the fourth parabolic functions, fifth exponential signal having 3 different phases. इन 5 सिग्नल्स में जो सेकंड था आपका इम्पल्स फंक्शंस, इसमें पूरी जिंदगी भी आप पढ़ लिए तो भी ये कम नहीं था. इतना डेप्थ उस सिग्नल्स में है, इम्पल्स में. इफ यू नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इम्पल्स, एग्जाम ओरिएंटेड डेफिनेशंस नहीं कह रहा हूँ, इफ यू नो द रियल टाइम एप्लीकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पल्स, आपको जॉब की जरूरत नहीं है. यू कैन एनकैश बाय एनी इंडस्ट्रीज, बिकॉज दिस इज द ब्यूटी ऑफ इम्पल्स फंक्शंस. द कंडीशन वन, यू शुड नो बाय हार्ट व्हाट इज इम्पल्स, बिकॉज in any programming or any algorithm, when you apply impulse, you will get the predicted and future values without going future samples. Okay, we'll discuss in application also. Okay, so I have my time limitations. So if you have any questions, kindly ask right now. Okay, we'll stop here and we'll discuss if you have any questions. कुछ पॉइंट्स आपको लगता है कि मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, दैट विल बी फाइन. मैं फिर से रिपीट करने के लिए रेडी हूं. कोणता पॉइंट फिर से करू, या कोई समज में नाही आहे तो पूछिए. मराठीत पण चालेल जर कुठला प्रश्न कळला नसेल किंवा काही समजलं नसेल. ओके, नो डाउट फ्रॉम अनिरुद्ध. ओके, फॉर रेस्ट ऑफ द यू, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. सॉरी सर, लास्ट पॉइंट थोड़ा ग्लांस में ले सकते हैं फिर से? कौन सा? फिफ्थ वाला. This one exponential? Yes sir. Okay. Exponential signal. First समझिए exponential means what? Exponential signals को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक मिनट. एक्सपोनेंशियल को आप कैसे समझ रहे? एक्सपोनेंशियल सिग्नल हम जैसे कहते हैं EXPO सिग्नल. एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स मतलब क्या है? सिग्नल्स जिसमें E रेज़ टू द पावर अल्फा एंड T, ये होता है एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स. नाउ इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स में आप जो भी वैल्यूज देते हैं, तो हमेशा एक बात ध्यान में रखिए, इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल, इफ द वैल्यू इज पॉजिटिव, सिग्नल गोइंग अप. इफ द वैल्यूज आर नेगेटिव, सिग्नल्स गोइंग डाउन. This is the simple case. If the value is 0, means constant, so signal is 1. This is what the 3 different shades of signals. Okay, now it depends on what actual calculation we perform on exponential power. If I do some changes in here, it is plus or minus. So हम प्लस चेंज करते हैं, माइनस चेंज करते हैं, तो अल्टीमेटली आई एम चेंजिंग शेप एंड साइज ऑफ योर एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स. तो इस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया है कि इसका एक्चुअल इक्वेशन क्या है. जनरलाइज इक्वेशन क्या है? जनरलाइज इक्वेशन है x ऑफ t इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर अल्फा t. तो अल्फा क्या है?
अल्फा इज नथिंग बट एनी पॉजिटिव आर्बिट्रेरी, मतलब अल्फा की रेंज क्या हो सकती है? अल्फा की रेंज होती है -∞ से लेकर +∞। भी हमने क्या किया है, -∞ से +∞ को स्प्लिट किया। कैसे? देखिए ऐसे, ये अल्फा की वैल्यू है। ओके, ये हो गया -∞, ये हो गया +∞, और ये हो गया 0। तो हमने इससे पहली केस निकाली कि व्हेन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, अल्फा इज इक्वल टू 0, ये हमने फर्स्ट केस बनाई। उसके बाद हमने सेकंड केस क्या बनाई? व्हेन अल्फा इज लेस देन 0, मतलब यहां से -1 से लेकर -∞ तक। और उसके बाद हमने नेक्स्ट केस बनाई अल्फा इज ग्रेटर देन 0, मतलब व्हाट? 1 से लेकर +∞। व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0, तो हमें ये आउटपुट मिला। ओके, व्हेन अल्फा इज लेस देन 0, मतलब माइनस, हमें ये आउटपुट मिला। एंड व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 0, हमें ये आउटपुट मिला। ये सब प्रोसेस करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिला। दिस इज व्हाट फर्स्ट केस। ओके, दिस इज माय फर्स्ट केस, जिसमें हमने मेंशन किया है अल्फा इज इक्वल टू 0 फंक्शन, आई एम गेटिंग द फर्स्ट कांस्टेंट। उसके बाद सेकंड केस में हमने क्या किया? अल्फा इज लेस देन 0, इट इज नेगेटिव, सो x of t is equal to e raised to power minus alpha t, and this result. And लास्ट में हमने क्या किया? अल्फा इज पॉजिटिव, so it is plus value e raised to power alpha t, and e raised to power alpha t, the function is simply up to values. So this is what the equations. Hope so. I justified your answer, Mr. Mihir. थैंक यू सर। ओके ओके ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो बता दिए, पूछिए।